It is the Ketu that gives you the immense amount of money beyond your imagination. Okay? The money which is beyond your imagination is given by the Ketu, and that is what the nakshatra is we are about to discuss today. Magha. Because Ketu rules over Magha, and this Magha is a reason of infinite money because this is the infinite loop. The loop of past, present, and future. Your past is your present will be your future will be your past. Are you getting it? Your parents could be your children. Now you are their children, maybe you were their parents. And this loop is infinite. And due to this infinite loop, the Ketu is capable of giving you infinite money. Although the reason I told you in advanced astrology course is that Ketu is headless, it doesn't think before giving. Every other planet will think कि आपकी कितनी काबिलियत है, आपने कितने घंटे काम किया, आपकी कितनी एजुकेशन है, आपका कितना स्किल है. Ketu will not care about it. He doesn't have the head. If he is giving it to you, he is just giving it to you without thinking, without calculating. And when the money is beyond calculation, that is when you have immense amount of money. Till it can be calculated, you can see it with Rahu. If it is very difficult calculation, see it with Rahu. If it is easy calculation, see it with Venus. So Mercedes is Venus, Rolls Royce is Rahu, and 500 Rolls Royces is Ketu. I hope the concept is clear. And if you understood this, you will be automatically understanding Magha Nakshatra. This is the second cycle of Nakshatras. The Nakshatra of Gandanta, the transition point. Remember, all the transition points are connected with the past karmas. And those past karmas are gonna affect you either in a very good way or in a very, very worse way. तो यहां पर जन्म लेने वाला गंड मूल में जन्म लेता है. Now you're getting from the word Gandanta, the Gand Mool is coming. When the Mercury nakshatra is ending and the Ketu's nakshatras are beginning, that is where the Gand Mool is there. But remember, it is only till Pada 2. In fact, 1.1 point some Pada, I don't know exact calculation right now. But yeah, it is 1 point something. Only till there it is गंडमूल. और लोग क्या कर रहे हैं, मघा पदा 4 में भी गंडमूल की पूजा कर रहे हैं. उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. या ज्येष्ठा पदा 1 में गंडमूल की पूजा कर रहे हैं, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है. बिकॉज दैट्स नॉट द ट्रांजिशन पॉइंट. But I don't want to go too off the topic, so we will stick to the Magha, the star of power. This is the nakshatra of extreme power, extreme authority. Who have the first authority on you? Your parents. Right? The government has no authority on you till you are 18. The government cannot do anything. Your parents will be blamed. So the first authority is the parents. And if we go beyond that, the first authority has to be Pitras.
Your parents will be your pitras, right? In fact, you are your own pitras. That's why this loop is going on. That's the infinite loop, right? So, this nakshatra is ruled by the pitras. The pitras are the deities of this nakshatra. Now, pitras यहाँ पर क्या represent कर रहे हैं? They are representing the ancestors or the ancestral spirits, and also the ancestral wealth, the ancestral traditions, the ancestral wisdom. अब यहाँ पर वो कहानी आ जाती है, अगर आपके पास आपके पितरों का आशीर्वाद है, सितारे कितने भी खराब हों, आप उस आशीर्वाद के साथ अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हो, बहुत आगे निकल जाते हो. इफ यू आर गुड विद द पितराज, इफ पितराज आर गिविंग यू ब्लेसिंग्स, यू नीड नो अदर ब्लेसिंग्स. तभी ट्रेडिशन शुरू हुआ कि अपने माँ बाप से ऊपर कोई भी भगवान नहीं है. इफ यू कैन नॉट वर्शिप योर पेरेंट्स, जितना मर्जी कहीं और जाकर के पाठ पूजा कर लो, यू विल गेट नथिंग. सिमिलरली, यदि आपके पितर आपसे नाराज हैं, तो आप कहीं चले जाओ, लोगों के लिए अच्छा कर लो, हॉस्पिटल्स में जाकर लोगों को खाना बांटाओ, लाख कुछ कर लो, यदि पितर नाराज हैं तो आपका कुछ भी नहीं बन पाएगा. So in this nakshatra you are getting the blessings from the pitras. The pitras are directly connected to you. Okay, and if you try to continue the family traditions, the karmic lineage, if you try to do whatever your parents used to do or your grandparents used to do, and आप अपने धर्म के रास्ते से नहीं भटकते, तो ये नक्षत्र आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है. ऑन द अदर हैंड, सबसे जल्दी पितृ यहीं पर नाराज होंगे. सबसे ज़्यादा नाराज हम किससे होते हैं? जो हमारे क्लोज हो. यहां पर पितृ उनके बहुत क्लोज हैं, तो आप एक गलती करोगे, आप फैमिली ट्रेडिशन छोड़ दोगे, आप किसी बाबे के मगर चले जाओगे, किसी और को मानना शुरू कर दोगे, कोई और रिलीजन में पैर रख लोगे, तुम कुछ भी अपनी लीनियज से हटकर करोगे, अपने पास्ट से हटकर करोगे, तो ये नक्षत्र आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा. ठीक है. द पितराज ऑल्सो एक्ट एज गाइड्स फॉर द लिविंग. यहां पर इनको क्या होता है? इनको ऐसा फील होता है कि कोई इनको गाइड कर रहा है. Magha is always guided by the Pitaras. They don't need astrological help. They don't need doctors for their life. They know that this is going to happen. That's how it should work. And Pitaras are also linked to Ketu, which is the ruling planet of this nakshatra as well. It represents the spiritual liberation and the resolution of ancestral karma. So this nakshatra brings duties and responsibilities towards your pitras, towards your past. And remember, मघा में जो जन्म है वो बहुत नियर लीनिएज से होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत मेहनत की कोई एक काम करने के लिए, लेकिन आप वो काम पूरा नहीं कर सके. अब आप उसी परिवार में 1 2 3 जनरेशन डाउन दोबारा से जन्म लोगे अपना वो काम कंप्लीट करने के लिए, अपनी वो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जो आपने किसी जन्म में शुरू की थी. उसी कुल में दोबारा आपका जन्म होगा. दैट इज व्हाट मघा एंड पितराज आर कनेक्टेड टू. And if it is related to more of luxuries and all those stuff, then what's going to happen is you will be enjoying the work of your ancestors. आपके ancestors ने बहुत मेहनत की, अब आप उसका फल enjoy कर रहे हो, क्योंकि वो ancestor आप ही थे. लेकिन उस जन्म में आपने सिर्फ कुछ बिल्ड किया और उसे एंजॉय नहीं किया. जस्ट लाइक कि आप खाना बनाते बनाते मर गए, आपने खाना खाया ही नहीं. अब इस जन्म में आपको बना बनाया खाना मिल जाएगा, क्योंकि खाना तो आप बना चुके हो. इस जन्म में ना से पिछले में बनाया होगा, उससे पिछले में बनाया होगा. कभी आपने कर्म किया था, उसका फल आपको अब मिलेगा. दैट इज मघा, इफ वेरी पॉजिटिवली प्लेस्ड.
और इट कैन ब्रिंग यू सम काइंड ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपने शुरू की थी और निभा नहीं पाए. And now is the time to go through those karmas again. Now is the time to continue the family tradition, to continue the family, its tradition, and the karmic lineage. So that is what this nakshatra is connected to. Pitras, which is very, very, very important thing to understand about this nakshatra. Ketu is the ruling planet. It is the planet of detachment and liberation. So केतु रिप्रेजेंट स्पिरिचुअल डिटैचमेंट. केतु डिटैचमेंट है, कट है, स्प्लिट है, हमने सबने पढ़ा है, राइट. सो यहाँ पर वो सब कुछ, इनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन पैसे की वैल्यू नहीं होती, बिकॉज दे आर डिटैच्ड फ्रॉम इट, दे नो लॉन्गर नीड इट. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. देयर इज समबडी विद मघा नक्षत्र, एंड ये कहानी है जो मघा के साथ कनेक्टेड है, और ये कुछ इस तरह है. एक आदमी है, मैं आपको कहानी उसके बिल्कुल सिमिलर है जो रियल लाइफ में है. मैं रियल लाइफ वाली स्टोरी आपको नहीं सुनाऊंगा, मैं थोड़ी सी आपको दूसरे टाइप की स्टोरी सुनाऊंगा ताकि आपको थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड हो. एक लाला जी हैं, लाला जी थे, और वो रोज़ शाम को सैर करने जाते थे. तो वो अपना आराम से सैर करने निकले होंगे, पीछे से उनके घर में आग लग गई. पूरा घर जलने लगा. नौकर भागते हुए आए और लाला को ढूंढा और लाला को कहा, लाला जी घर पर आग लग गई है. तो उसने कहा, तो मेरे पास क्या करने आए हो, जाके बुझाओ उसे, बुझती है तो बुझाओ. तो नौकर थोड़ा आगे गए, जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, लाला बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही सैर कर रहा था. तो उन्होंने कहा, लाला जी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, घर पे आग लग गई है. तो लाला जी ने जवाब दिया, कहते अब 2 कौड़ी की आग के लिए अपनी उम्र भर की चाल बदल दें. कहता हम तो सारी उम्र इसी तरह सैर करते आए हैं, शाम का समय हमारा सैर का है, लगी होगी आग, घर पर लगी होगी, तो मैं अपना सैर कर रहा हूँ, मैं सैर करके आऊँगा, आप आपसे बुझती है बुझाओ, जलता जले बुझता बुझे, आई डोंट केयर. दैट इज मगा. दैट इज द डिटैचमेंट, द लेवल ऑफ डिटैचमेंट. ही डजंट केयर हिज हाउस इज बर्निंग, इज लाइक ठीक है यार, ओके बर्न हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई विल नॉट मूव माई वे, मैं इसमें हड़बड़ी क्यों करूं. तो ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पर स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ जाते हैं अगर ये पॉजिटिव हो. ठीक है, तो ये बंदे ने घर की आग की चिंता नहीं की, आराम से चलता रहा. अब आगे आपको रीजन पता लगेगा क्यों चलता रहा, क्योंकि इस नक्षत्र का जो सिंबल है दैट इज अ रॉयल थ्रोन, जिस पर राजा बैठता है, सिंहासन. तो वो राजे की चाल चलते हैं ये, दे डोंट केयर. अब राजे को सबसे कम टेंशन होती है पैसों की. पैसों की टेंशन किसको होती है, जो बेचारा काम कर रहा है, जिसने घर चलाना है. राजे को क्या दिक्कत है, राजे के पास पैसा आ रहा है, वो यूज कर रहा है. ठीक है. नाउ केतु यहां पर फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है. अब आपको आई सपोज वो स्टोरी से ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. ठीक है ना. ही इज फ्री फ्रॉम दैट मटेरियल अटैचमेंट. ही इज लाइक ठीक है यार, घर है, जल रहा है, कोई नहीं, मैं तो झोंपड़ी में भी रह लूंगा. अब जरूरी नहीं है कि ये आदमी करोड़पति ही हो. मैं आपको एक स्टोरी और सुनाता हूं. 2 साधु थे और एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें वो रहते थे. तो एक दिन वो गांव में भीख मांगने गए होंगे अपना भिक्षा पात्र लेकर के. तो वो गए और वापस आते आते तूफान आया, बहुत ज़्यादा तूफान आया. जब वो वापस आए तो एक साधु रो पड़ा. उसने कहा, तुम रो क्यों रहे हो. कहता, हमारी आधी झोंपड़ी उड़ गई है. उनकी आधी झोंपड़ी उड़ चुकी थी, उसकी छत उड़ चुकी थी, आधी झोंपड़ी गायब हो चुकी थी और आधी ही झोंपड़ी बची थी. तो जो मघा नक्षत्र वाला था उसने कहा, क्या बात है. प्रभु ने सोचा कि अब आगे बारिश के दिन आएंगे तो हम खुली छत में बारिश का एंजॉय कर पाएंगे. हम एक तरफ सोएंगे और दूसरी तरफ पानी बहेगा. वाह, कितना मजा आएगा.
भगवान ने कितनी बड़ी चीज हमारे लिए सोची है कि हम इस चीज का आनंद ले सकेंगे। और रात्रि के समय हमें कभी बाहर जाना पड़ता था, कभी गर्मी लगती थी, अब तो रात की ठंडी ठंडी हवाएं सीधा हमारे ऊपर पड़ा करेंगी। तो परमात्मा कितना अच्छा है जो हमारे लिए इतना सोचता है। तो ये दो पर्सपेक्टिव हैं। जो मघा वाला है वो स्पिरिचुअली अटैच्ड है और मटेरियल उसको फर्क, उसकी झोपड़ी उड़ भी गई है और वो अभी भी ये कह रहा है कि क्या बात है यार, भगवान ने इतना सोचा हमारे बारे में। और ये जो दूसरा जो गालियां निकाल रहा है वो कौन से नक्षत्र का है, ये आप लोग खुद डिकोड करोगे। ठीक है। नाउ केतु इज लिंक्ड टू द पास्ट लाइफ कर्मा एंड इट इंडिकेट्स द एरियाज ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेसेस फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ टाइम्स। तो अगेन वही बात आ गई, जो आपने काम नहीं अधूरा छोड़ा होता है इस जन्म में आपको उसे पूरा करने का मौका देता है मघा नक्षत्र। ठीक है। और यहां पर केतु कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट एज अ सेंस ऑफ ड्यूटी टू कैरी फॉरवर्ड द फैमिली लेगेसीज। राजे का बेटा ही राजा बनता है। दिस इज द नक्षत्र रिलेटेड टू नेपोटिज्म एज वेल। ठीक है। बाप पॉलिटिशियन है तो बेटा पॉलिटिशियन बनेगा, बाप बिजनेसमैन है तो बेटा भी बिजनेसमैन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि उसको फैमिली लेगेसी को आगे लेकर जाना है। राजे के बेटे को ही राजा राजगद्दी मिलती थी ना, कोई बाहर का आदमी तो राजगद्दी ले नहीं सकता था। वहां तो कोई इलेक्शन नहीं होते थे, देयर वॉज नो डेमोक्रेसी। That is what this nakshatra is related to. This is also related to intuition and hidden knowledge. Now why hidden knowledge, इसके ऊपर भी हम अभी आएंगे। Hidden strategies, that is because of the rats connected to this nakshatra. I'll come to it later. Now whatever you truly know about the Leo is actually about Magha. Whatever you know about Leo is actually about Magha. The fire is the element. Magha is the fire element. Ruling planet Surya, fixed. सोच लिया सोच लिया। ठीक है। Symbol is lion. It is representing power, royalty, courage, leadership, creativity, self-expression, nobility, pride, अहंकार। उसने क्या बोला? 2 कौड़ी की आग के लिए सारी उम्र की चाल बदल दें? नहीं, चाल नहीं बदलेगी। ठीक है। तो ये जो प्राइड एंड ऑनर है ना, कि मैं चेंज नहीं होऊंगा, जो मर्जी हो जाए, आई विल नॉट चेंज, इट इज वॉट इट इज। इफ आई एम लाइक दिस आई एम लाइक दिस, यू लाइक मी इट्स फाइन, यू हेट मी इट्स फाइन, मैं राजा हूं, मैं ऐसा ही रहूंगा। ठीक है। तो ये लीडरशिप एंड अथॉरिटी का नक्षत्र है, एंसेस्ट्रल पावर का नक्षत्र है। नाउ सी, 5th हाउस इज योर फ्यूचर। वट एवर यू बिल्ड इज गोना गो टू योर चिल्ड्रन। अगेन गद्दी आगे शिफ्ट होगी। Leo is falling in the 5th house, right? And this is all about public image and creative leadership, because 5th house is creativity as well as Leo is leadership. Got it? I think clear होगा, इसमें तो कोई confusion वाली बात नहीं है। Now this is important. The male rat is the symbol of this nakshatra, which is also the symbol of hidden power. Rat जो है ना, वो देखने में बड़ा छोटा सा क्रिएचर लगता है, लेकिन जिसके घर में रैट मैंने वो हुई है ना इन्फेस्टेशन, उन्हें ही पता है कि रैट्स को एक बार घर में आ जाएं तो रैट्स को निकालना कितना मुश्किल है। राइट? रैट्स विल बी सीन एज वेरी स्मॉल। रैट, दे आर हार्मलेस। नो 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 नो, दे कैन पुट यू इन टू द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस and they have the ability to get out of any difficult situation. They are very clever. If you understand this thing, you will be decoding the Magha nakshatra ऐसे। ठीक है। Rat is often seen as a small humble creature, yet it is also known for its cleverness and ability to thrive in difficult situations. While Magha native might have a regal and dignified appearance देखने में, ठीक है, as reflected by the nakshatra connection to royalty and nobility, the rat reminds them of the humble, discreet and often secretive nature of their inner workings. चुपचाप डिस्क्रीटली काम करना, हिडन रहकर काम करना,
और बड़े हम्बल से रहकर काम करना। ऊपर आप जब रैट को देखते हो ना, आपको लगता है यार इतना सही है, बस यहाँ से रैट आता है चला जाता है, बट अंडर द ग्राउंड रैट इज हैविंग अ कंप्लीट कॉलोनी with the complete design of a different maps. Their tunnels are going to a specific places and they know which tunnel to go in when. So Ketu is underground and rats are also living in that underground. So Magha will be way too much underground. जितना आपको मघा वाला बंदा दिखता होगा ना, उतना है नहीं, बहुत गहराई में है अंदर। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट पैटर्न्स हैं, बहुत सीक्रेटिव उसके वर्क होंगे और डिस्क्रीट नेचर से वो काम करेगा। ही विल नॉट प्ले द ओपन कार्ड गेम। द मगा विल नॉट ओपन हिज कार्ड्स टिल द वेरी लास्ट मोमेंट। Okay, so very secretive nakshatra. The rat operates behind the scene, much like how Magha born individuals often have hidden strength, hidden wisdom, and influence that might not be immediately visible to the outside world. डायरेक्टली मघा की तरफ आप देखोगे यार बड़ा नॉर्मल सा बंदा है। आते हैं मेरे पास लोग, आते हैं कई, टू व्हीलर पे आएंगे, छोटा सा टू व्हीलर होगा और अंदर आके बात करेंगे, सर कोई 3-4 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना सी, दस दियो कितने करिए। अरे यार वो आदमी को देखकर आप कह नहीं सकते इसके पास 3-4 करोड़ होगा भी, बट इज नॉर्मली टेलिंग 3-4 करोड़ है, कहाँ इन्वेस्ट कर। अब आउटसाइड वर्ल्ड के लिए दे आर वेरी 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 ऊपर ऊपर से, हाँ ठीक है नॉर्मल बंदा, बट इन हिडन दे हैव कनेक्शंस, दे हैव मनी, दे हैव ऑल द रिसोर्सेज जो उनके काम आएंगे। ओके, नाउ द रैट इज एन अर्थ बाउंड क्रिएचर दैट मूव्स थ्रू बोरोज एंड tunnels. So this connection to the earth gives the rat link to material existence because earth is all the material plane. So here the material existence के साथ लिंक बन रहा है, लेकिन मघा फिर भी अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ही फोकस करता है, बट ऑल्सो ग्राउंडेड टू द मटेरियल वर्ल्ड। तो इनका जितना ये स्पिरिचुअल होंगे उतना इनके पास पैसा आएगा, एंड वाइस वर्सा, जितना इनके पास पैसा आएगा उतना ये स्पिरिचुअल हो जाएंगे। इस पे हमारे ओशो कहते हैं जोरबा द बुद्धा। जोरबा होता है द पर्सन विद ऑल द मनी, द पर्सन विद ऑल द लग्जरीज, एंड बुद्धा इज द मोस्ट स्पिरिचुअल पर्सन। सो लाइफ में अगर कुछ बनना है तो जोरबा द बुद्धा बनना है, हमारे पास सब कुछ हो और फिर भी हम किसी से अटैच्ड ना हो। अगेन लाला जी वाली स्टोरी याद रख लो, आप मघा को याद रख लोगे। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स दिस इज मोर ह्यूमनली, सो ये ह्यूमिलिटी एंड ओवरकमिंग ईगो के ऊपर बहुत काम करता है। द रैट्स इनकरेज ह्यूमिलिटी, यू नो, शोइंग दैट द ट्रू पावर डज नॉट नीड टू बी ओवरली डिस्प्लेड। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल हु आर बिलियनियर्स, डू दे वियर गुची? डू दे वियर वर्साचे? हैव यू एवर सीन बिल गेट्स वेयरिंग गुची, वर्साचे, दैट काइंड ऑफ ब्रांड्स? Have you ever seen Anant Ambani और मुकेश अंबानी wearing Gucci और that kind of thing? ना, सिंपल सी टी शर्ट पहन के घूम रहे होंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज दे ट्रूली बिलीव दैट द पावर शुड नॉट बी ओवरली डिस्प्लेड। द ट्रू पावर डज नॉट एग्जिस्ट इन डिस्प्लेइंग। गॉट इट? सो दिस इज नॉट अ नक्षत्र ऑफ फुकरी। फुकरी नहीं मारेंगे, हाँ ठीक है यार बहुत बढ़िया, जो है सो है। Now, the throne is the symbol of this nakshatra. Throne is passing from one person to another, to another, to another. So this is a royal nakshatra. And see, today we had MC elections here. And now we are talking about the throne. We were supporting 5 people. 5 of them won. पांचों के पांचों जीते. तो वो यहाँ इस throne के साथ connected है कहीं ना कहीं. So we are discussing this nakshatra and today we won the throne. ठीक है, सो एंसेस्ट्रल लेगेसी एंड ड्यूटी को ये रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू नोबल एंड रॉयल लीनियजेस को कनेक्ट करता है। बड़े बड़े लोगों के साथ लिंक्स, खुद भी बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ होना। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग नॉट जस्ट द लीडरशिप बट द राइटफुल पोजिशन इन द लीनियज ऑफ रूलर्स, किंग्स और लीडर्स। गद्दी किसको मिलेगी?
राइटफुल पोजीशन पर भी होना आपका बनता है। ठीक है, तो जब एक राजा के 3-4 बेटे होते थे तो बड़ा कश्मकश में चला जाता था राजा की गद्दी किसको दे। इस पे एक स्टोरी थी। यप, इट्स अ गुड स्टोरी टू लिसन। I don't know if it is connected to it or not, but yeah, it is a very good story to listen and tell, and I would love to discuss. So एक राजा था, उसके 2 बेटे थे, और जो 2 बेटे थे उन दोनों में से किसी एक को राजगद्दी मिलनी थी। तो राजा ने इनको कहा कि मैं तुम्हें एक कमरे में बंद कर रहा हूं, तुम में से जो इस कमरे से पहले बाहर आएगा, सुबह होने से पहले, 12 घंटे का टाइम है, सुबह होने से पहले जो तुम दोनों में से पहले बाहर आएगा उसे राजगद्दी मिल जाएगी। तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया, दोनों भाइयों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। अब वो एक भाई बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत दिमागी भी था, उसको गणित आता था, भूगोल आता था, अलग अलग तरह की शास्त्रीय विद्या आती थी। तो वो ना अपनी बहुत सारी किताबें साथ में लेकर गया था अंदर। तो उसने एक एक किताब में ढूंढना शुरू किया कि बंद कमरे से बाहर कैसे निकला जा सकता है। ना तो उस कमरे में कोई खिड़की थी, ना कोई टनल थी, ना ही आसमान से आया जा सकता था, कोई वे नहीं था। तो उसने अपनी रिसर्च शुरू की, और जो दूसरा भाई था वो चुपचाप सो गया। अब ये तो रिसर्च करता रहा पूरी रात। जब ये रात के बाद उठा तो इसको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, और जो बड़ा भाई है, जो एक और दूसरा भाई था जो सो गया था, वो उठा, उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। ये बात बड़ी हैरानी की थी। वो भाई बाहर आया, उसने कहा तुझे तुझे कैसे पता लगा बाहर कैसे निकलना है? कहता मैंने तो सिर्फ ये चेक करने के लिए दरवाजे के पास गया था कि दरवाज़ा कहीं खुला ही तो नहीं है, हो सकता है इन्होंने दरवाज़ा बंद ही ना किया हो। तो कहता जब मैंने दरवाज़ा खोला वो खुला था, मैं चला गया। तो जो सही लीडर होता है वो पहले ये सोचता है कि दरवाज़ा बंद है भी, कि सिर्फ हमें साइकोलॉजिकली बताया ही गया कि दरवाज़ा बंद है। तो कभी कभी लाइफ में सिर्फ आपको बताया जाता है कि दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खुला भी होता है। यू जस्ट नीड टू गो एंड ओपन द डोर। Okay, and for the magha I always tell them this as a remedy, that if you want to be the deserving candidate, जो आपका रास्ता बंद कर दिया जाता है वो एक्चुअली बंद होता नहीं है। आपको वे आउट फाइंड करना है उस दरवाजे को, इस तरीके से देखने का कि ये दरवाजा खुला कैसे है। अगेन कनेक्टिंग टू द बैकवर्ड स्टोरी, झोपड़ी आधी ढल गई, टूट गई, लेकिन आपको देखना है इसमें भी कुछ अच्छा हुआ है। क्या बात है यार, भगवान ने सर्द रात को तो गर्मी बहुत लगती है, उन्होंने हवा का अरेंजमेंट कर दिया। Got it? So, the throne is the symbol of dynasty as well. It is passed down through the generations, जो मैंने आपको बताया, like present with the past and the past with the future. Sitting on the throne is not just the symbol of power, but also the responsibility. So the dialogue of Spider-Man will come here. With the great power comes the great responsibility. So if the Magha is having great power, they are also having the great responsibility. Okay, Magha Nakshatra may embody the powerful presence yet inhibit humility in their leadership style. ये फिर वही बात आ गई कि ज़्यादा फुकरी नहीं मारनी है, सिंपल सिंपल सिंपल। They may not seek external validation for fame. You like it? Okay. You don't like it? Okay. I am fine. I am following my role to fulfill my family's legacy. Next. अब ये पैसा, ये घर, ये शोहरत, सब कुछ मिल गया, अपने लिए नहीं मिला ये। This is a Shudra, worker. Magha Nakshatra is having the sense of service or dedication to something larger than themselves. ये जो गद्दी है इसका इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर रहे, फैमिली के लिए कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ड्यूटी के लिए कर रहे हैं, कोई और हायर पर्पस के लिए कर रहे हैं। So there are people who are earning money but not for themselves. There are people who are going in politics but not for themselves. There are people who are serving for the community because that is their responsibility.
Despite the royal symbolism of the throne, those born under Magha may feel that their power is best used in the service of others, and that true greatness is achieved only through humility and self-sacrifice. ज़रा सोचो, आपके पास करोड़ों रुपया है और आप कोई कपड़े नहीं खरीद रहे, आप कोई गाड़ी नहीं खरीद रहे, आप कोई बंगला नहीं बना रहे, तो क्या वैल्यू है उस पैसे की? कोई वैल्यू नहीं है. So the people doing very, very, very big charities, again related to Magha, they worked and now they are just gonna give it away. They may often find themselves in situation where they need to put aside their personal desires and personal needs for the greater good, particularly in the relation of the ancestral obligations. मेरे दादाजी का सपना था कि हम स्कूल बनाएं, इसलिए मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत करके स्कूल बना दिया जिसमें फ्री बच्चे पढ़ेंगे. मेरे परदादाजी का सपना था कि हम ब्लाइंड होम बनाएं, तो इसलिए मैंने ब्लाइंड होम बना दिया. हमने अपनी प्रॉपर्टी उनको दान कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो. सो अपनी पर्सनल डिज़ायर्स को साइड पे रखकर कुछ बड़ा करना, और ख़ास तौर पे वो जो एंसेस्टर्स का सपना था. अब याद रखो, वो एंसेस्टर्स का सपना आप पूरा नहीं कर रहे हो, आप ही अपना सपना पूरा कर रहे हो, क्योंकि वो सपना देखने वाले आप ही थे. तभी आपको मगहा में जन्म लेने का मौका मिला है, ताकि आप अपनी पुरानी चीज़ों को पूरा कर सको. That is why the personal desires are being fulfilled, but they are just not personal in this life. They are just not personal of this body, but they are personal to somebody else who you were in a different body. So the concept of soul comes here, and that's why fifth house represents the soul. See, everything is connected. Now, there are few more things about Magha. The story of the Vikramaditya is also related with the Magha. And okay, there is a very, very, very beautiful story about Vikramaditya. Everybody knows him, right? Anybody who doesn't knows Vikramaditya? बेताल पच्चीसी की कहानी सबने सुनी होगी कि राजा विक्रमादित्य था और उसको एक बेताल नाम का राक्षस, कोई चुड़ैल भूत था, उसको लेके आने के लिए कहा गया था, और फिर वो 25 कहानियाँ सुनाता है, राइट? ये कहानी बहुत दिलचस्प है, और जिस तरीके से इस कहानी को ओशो ने एक्सप्लेन किया है, किसी ने नहीं किया. और अगर आप इसको समझ लोगे तो आप मगहा को और डीपली समझ लोगे. जितना प्यारा ओशो ने एक्सप्लेन किया उतना प्यारा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको विक्रमादित्य की कहानी शुरुआत से थोड़ी सी सुनाऊँ. राजा था, बहुत बड़ा राजा था विक्रमादित्य, और रोज़ सुबह उसके पास कोई भेंट लेकर आते थे लोग, कुछ खाने को. कोई कुछ खाने को ले आता था, कोई कपड़ा ले आता था, कोई सोने का सिक्का ले आता था, कोई चांदी के सिक्के ले आता था. और एक आदमी था, एक बहुत अजीब सा कोई तंत्र मंत्र वाला पंडित था, जो कि एक बहुत जंगली सा फ्रूट लेकर आता था रोज़. और जहाँ पर राजे का सारा सामान पकड़ता था, आगे दे देता था, वो ऐसे करके रोज़ वो फ्रूट आता था, वो चला जाता था, फ्रूट आता था, फ्रूट चला जाता था. 7 साल ऐसा ही चला. अब मैं एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, 7 था कि 14 था, लेकिन हाँ 7 साल 8 साल ऐसा ही चला. 7 साल लगातार वो आदमी वो भेंट लेकर आता रहा, और वो भेंट को ऐसे ही एक्सेप्ट करता रहा. एक दिन 7 साल बाद राजा ने वो फ्रूट अपने वजीर को देने की बजाय अपने बंदर को दे दिया, और वो बंदर ने उस फ्रूट को खाना शुरू किया, और खाते खाते उस फ्रूट के बीज की जगह उसमें से एक हीरा निकला. और वो हीरे का जो साइज था, वो हीरा कभी राजा विक्रमादित्य ने देखा ही नहीं था. इतने बड़े साइज का हीरा, और रोज एक फ्रूट वो आदमी लेकर आ रहा है. रोज जिंदगी रोज फ्रूट लेकर आती है, जिंदगी रोज हीरा लेकर आती है, हम देखने के लिए चूक जाते हैं. राजा विक्रमादित्य को 7 साल लगे उस फ्रूट में हीरा देखने के लिए. आपको शायद 25 लगेंगे, 50 लगेंगे, 60 लगेंगे, पर जिंदगी रोज फ्रूट लेकर आ रही है. दिस इज मगहा. लाइफ इज ब्रिंगिंग अपॉर्चुनिटी एवरी सिंगल डे.
यू माइट जस्ट नॉट लुक एट इट, जस्ट लाइक विक्रमादित्य इग्नोर्ड कि ये छोटा सा बंदा मेरे लिए क्या ही कर रहा होगा, जंगली सा दिखने वाला फ्रूट लेकर आ रहा है, क्या ही दे रहा होगा उसमें। अब उस वजीर से पूछा गया कि बाकी के फ्रूट कहाँ कहाँ है भाई, तेरे को 7 साल से भेंट आ रही है, फ्रूट कहाँ है। अब वो फ्रूट्स एक कारागृह में फेंकता जाता था, जो भी भेंटें आती थी। तो उस कारागृह को खोला गया और देखा गया उसमें हीरे ही हीरे, इतने हीरे कि वो राजा कभी सोच नहीं सकता था। अब मटेरियल आ गया, अब बारी डिटैचमेंट की है, इस मटेरियल से डिटैच कैसे होना है। अब उस आदमी ने कहा कि ये हीरे तो तुम रख लो, लेकिन आज शाम को इतने बजे मेरे पास शमशान में आ जाना, तुम्हारे लिए काम है। अब ये राजा डरता भी था। डर डर सबको लगता है, ऐसा नहीं है कि राजा विक्रमादित्य को डर नहीं लगता। रात को कभी अमावस्या की रात 12 बजे शमशान जाके देखना, डर आपको भी लगेगा, डर सबको लगता है। But how you overcome it, that's what matters. So Magha is all about overcoming, and Magha is all about getting detached from the throne. कि एक इतना बड़ा सम्राट होकर के रात को अमावस्या की रात को शमशान में जाकर ऐसे बैठ गया, हाँ जी बताओ जी क्या करना है। तो इसमें ईगो की बैक ब्रेक हो जाती है नक्षत्रा में, लेकिन वो तब होती है जब तक वो ईगो बिल्ड ना हो, तब तक नहीं हो सकती। जब तक हीरे आ ना जाएं तब तक आप हीरो से डिटैच नहीं हो सकते। टिल यू डोंट हैव मनी यू कैनॉट गो बियॉन्ड मनी।